अस्सलाम वालेकुम बॉयज। वालेकुम हेलो, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं बेटा? खैरियत से हैं आप? एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Yes, everyone please turn on your camera please. जी बॉस, now we will start the class. Mubashir, where is your camera beta? Mubashir, Afaf, Ayman, हसन मलिक। अब मैं जिसका नाम लूं जरा सा वो अपना माइक ऑन करके मुझे बताइए। अफाफ, अफाफ आर यू हियर बेटा? देखिए जिसका माइक से मुझे आवाज नहीं आ रही, आई विल रिमूव। राइट? अफाफ, आर यू हियर? अलीना? Yes, sir. ओके। अयान शहजाद? Yes, yes. ठीक है। एमन? एमन? Yes, sir. फातिमा अमान? Yes, sir. ओके। फातिमा हबीब? Yes, sir. हानिया मिर्जा? Yes, sir. जैसे इमरान? जैसे इमरान? Present, sir. ओके। मुबश्शिर रजा? Yes, sir.
Mubashir Raza, Muhammad Ammar, Muhammad Ammar Warren. Yes, sir. Okay, right. So Muhammad Ammar Warren. Muhammad Hamza Siddiqui, Yes, sir. Muhammad Shamir, Yes, sir. Mustafa Ali, Yes, sir. Sayyid Sarim Muhammad Mudeem, Yes, sir. Sayyid Awan Ali Zadi, Yes, sir. ठीक है, उरूज, Yes, sir. उस्मान शेख, Yes, sir. हसन मलिक, हसन मलिक, हसन मलिक, आई विल रिमूव. इज इट क्लियर? ना तो आपका कोई माइक का ऑप्शन आ रहा है ना कुछ आ रहा है, आपने ऑडियो ही ऑन नहीं की हुई. और ये मत कहिएगा ये लास्ट टाइम भी आपसे यही हुआ था. ओके प्लीज, सॉरी. Now today we will start the class. So yeah, you know we have 2 period now. Give voice. Mr. Ahmed Gaba. Ahmed Gaba, today is your first class. Yes, sir. Okay. Today is your first class. Where were you? मैं गया हुआ था सर आउट ऑफ ठीक है. सिटी. Out of city. Okay. Now today we will start the quadratic equation and we have done. We have started now, but we will start the exercise and we have started the exercise or exercise 1A. I think we have done. Exercise 1A last class we were doing exercise 1A or not? Yes, twice. Please tell me. जी बेटा, कोई मुझे आइडिया दे सकता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 2. Yes, boys and girls, please. Hello. सर आपने एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए थे अपनी तरफ से. एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की थी. नो. ओके ठीक है. टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 11A. ठीक है. अब आज से जो है वो खैर मेरे पास वो आ जाएगा. ठीक है, चलो. Exercise 1A. Sir, you will जी. start exercise from book 3, right? Yes. I am starting exercise 1A, book 3, page number 009. Is it clear? Page number 9. ठीक है. और ना सेट है. चलो. Exercise 1A, book 3, page 9. ठीक है. चलो. Question number. देखिए सबसे पहला आपके पास क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 is given that solve each of the following equations. ठीक है. What is the instruction? 2x square plus 5x minus 7 is equal to 0. You will apply the coordinate middle term. It is a quadratic equation. It is a quadratic equation, or in quadratic equation we will apply the middle term breaking. What? Middle term breaking. How can we find the middle term breaking? Listen please. What is the coefficient of x square? The coefficient of x square is 2. Now 2 multiplied by 7. So what is the answer? 2 multiplied by 7, it will be equal to 14. Okay. And what are the factors of 14 when you will multiply? What are the factors of 14? You will 2 sevens of 14, 2 and 7. Very good, very good. So it means you can write this 2x square plus 7x minus 2x minus 7 is equal to 0. 7 minus 2, it will be equal to 5. Correct? Now we will take common from the first 2 term and the last 2 terms. So x is common. So what is the answer? 2x plus 7. And here is minus 1 is common. So what is the answer? 2x plus 7 is equal to 0. Next step, both bracket. Again, I told you in middle term breaking, if both bracket are same, it means you are right. Is it clear? So it means you can write this 2x plus 7 into x minus 1 is equal to 0. So you can write this formula here.
2x plus 7 is equal to 0, or x minus 1 is equal to 0. Okay, so the first value of x, what will be the first value of x? Yes. Okay, x is equal to minus 7 upon 2, and or x is equal to 1. It is your perfect answer. Clear? Yes. Any question, please? Right? It is very important. Listen, please. तो इन चीजों पे जरा सा गौर कीजिएगा. Now, what is the second part? For example, question number 1C. Okay, question number 1, part C. What is the question number 1C? The 1C is given that 7x plus x squared minus 18 is equal to 0. It is a quadratic equation, but the problem is that it is not arranged. Okay, for quadratic equation, it is necessary the first term will be the square term. Is it clear? The second term will be the x term, and the last term will be the constant. Is it clear or not? Yes, I am. Yes, I will repeat again. Okay, in quadratic equation, the first term will be the square term, the second term will be the x term, okay, and the last term will be the constant. Okay, so can you tell me what is the coefficient of x square? Yes, what is the coefficient of x square here? Yes, it is a 1, and 1 multiplied by will be the bracket. Sorry, 1 multiplied will be the constant. So what is the answer? 1 multiplied by 18, it will be equal to 18. So x square plus 7x minus 18 is equal to 0. 9 2s are 18. Sorry, 9 2s are 18. 9 minus 2 is 7. 9 2s are 18. So it will be equal to, x will be common and 2 will be common. So x into x plus 9 minus 2 will be common. X plus 9 is equal to 0. X plus 9 and x minus 2 is equal to 0. It will be equal to 0 and it will be equal to 0. The first value of x is minus 9, or the second value of x is equal to 2, and it is your perfect answer. Yes, boys. Any question, please? Sorry, is it clear or not? Right. Next, one more thing. For example, question number 1E. Okay, everyone, please look at the board. Okay, question number 1E. What is the question number 1E? Is given that x into 3x minus 1 is equal to 2. So yeah, I will ask randomly. Yes, Mr. Ahmed Gaba. Mr. Ahmed Gaba, you are the first of the class. Ayan Shahzad. Ayan Shahzad, are you listening, beta? Ayan Shahzad. Ayan Shahzad, are you here? देखिए मैं 3 दफा जो है वो आपके पास नाम दूंगा, और अगर कोई नहीं आ रहा so I will remove. Ayan Shahzad, are you here? Ayan Shahzad. Ayan Shahzad, are you listening बेटा? आप ये मत रहिएगा कि मैंने अटेंडेंस ले ली है तो मैं जो है वो आप जो है वो अब मैं निकल जाऊं, या मैं उसको रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं कहीं का कहीं निकल जाऊं. सो इट इज नॉट नेसेसरी. मैंने अभी अटेंडेंस नहीं ली है, मैंने सिर्फ एक ऐसी किया है. ठीक है, अटेंडेंस में लास्ट में ही देता हूँ. ठीक है. Aman, are you listening बेटा? Yes, Fatma Habib. Yes, can you tell me please, how can you solve this? जी फातिमा.
Sir, we can solve this by multiplying it. What multiplying? We will multiply x with the bracket and the numbers which are inside the bracket. So what is the meaning of the bracket? Sir, Means x multiplied by this. You are saying that, and x multiplied by this, right? You are saying Yes. that, right? So x into 3x. So what is the answer? 3x square. X into 1 minus x is equal to 2. Any question, please? Now the next Sir, I step want is to- here. Yes. Sir, The first step is which part have you, sir, which part have you done before part E? party. We are doing party. So yeah, x into 3x square, x into 1 is x, and x is equal to 2, right? And quadratic equation, the first term will be the square, the second term is x, and the third term will be the constant. So how can we solve this? 3x square minus x minus 2 is equal to 0. Is it clear? Now, what is the coefficient of x square here? The coefficient of x square is 3, and 3 multiplied by the last term. What is the last term? The last term is 2. 3 2s are 6, and 3 minus 2 will be equal to 1. So you can apply here the middle term breaking. 3x square minus 3x plus 2x minus 2 is equal to 0. Okay, right? Now the common from the first two term and the last two term. The common from the first two term is 3x. What is the answer? X minus 1. The common from the last two term is 2, and x minus 1 is equal to 0. Right? Now the second is x minus 1, and then it's 3x plus 2 is equal to 0. The first value of x is equal to 1, or the second value of x is equal to minus 2 upon 3. Yes, boys. Any question, please? Do you have any problem in this part or not? बता दें मुझे। जी एक्सक्यूज मी सर जी बेटा बोले। सर आप मुझे बता सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x कैसे आया? सॉरी सर व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर सर नेम? मोहम्मद अम्मार। जी मोहम्मद अम्मार, क्या कह रहे हैं आप? ये सर 3x स्क्वायर माइनस 3x कैसे आप आया? क्लास में नहीं थे सबसे पहले बात, तो अगर मैं आपसे पूछूं। सर मंडे वाले दिन मैं रिमूव हो मैंने गया मंडे की था। बात नहीं करी, मैंने अभी की बात की। ये क्वेश्चन मैंने मंडे को कराया था। नहीं सर अभी करवाया है। बस तो फिर मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूँ, इट मींस यू आर नॉट इन क्लास ना। सर स्टार्टिंग से क्लास में। क्लास में तो फिर आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि जो है वो एक्स कैसे आया? अच्छा चले, मैं वो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको एरो नजर आ रहा है? जी सर। सही है। एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से 3 and 1। खाली 3 तो नहीं लिखा हुआ वहां पे। 3x and 1। 3x है ना, तो पहले x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 3x से। व्हाट इज आंसर? 3x स्क्वायर। फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। व्हाट इज आंसर? x। तो फिर 3x स्क्वायर, and you will arrange this equation 3x square minus x minus 2 is equal to 0. Again you will apply the quadratic form, middle term breaking. यहाँ पर आप, is it clear? ओके सर। बेटा क्लास में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है? पैरल कोई मसला नहीं है, वो मैंने बता दिया आपको, राइट? नाउ अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको 2 चीजें करवाता हूँ, ठीक है? इन 2 चीजों पे बहुत जरा सा ध्यान दीजिएगा, और ये पेपर में आते हैं, ठीक है? पास पेपर में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 ब्रैकेट्स, x minus 1. Listen, the question is given that x minus 1 and x plus 2 is equal to 0, ठीक है? ये क्वेश्चन गिवन है। एक और क्वेश्चन गिवन है कि x minus 1, सॉरी, एक और क्वेश्चन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल लिसन, yes, and the part f is given 7 minus 3x and x plus 2 is equal to 4. So what is the difference between both equations? Anyone can tell me? Yes, please. Raise your hand or please tell. Yes. मैं सबसे पूछूंगा 1 by 1, और अगर मुझे किसी का माइक या किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो I will remove it, right? Right? Okay, I will remove you. Listen please. Yes. What can I do? Listen please, everything. Listen please everyone please. For example, if 2 brackets are multiplying, अगर 2 brackets आपस में multiply हो रहे हैं and it will be equal to 0, it will be equal to 0, it means your question will be solved
right? It means this bracket will be equal to 0 and this bracket will be equal to 0. बात समझ में आई या नहीं आई? दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड आफ्टर इज इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू 0. इट मींस कि आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है क्वाड्रेटिक उसका मिडिल टर्म ब्रेकिंग का एंड इट इज द लास्ट स्टेप. और this bracket will be equal to 0, this bracket will be equal to 0. For example, x minus 1 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0, right? The first bracket of x is equal, the first value of x is 1 and the second value of x is equal to minus 2. It is your answer. Any question please? ठीक है. अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है कि ये किसके बराबर होना चाहिए? ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो तब ये डायरेक्टली सॉल्व होगा. अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते. What will you do? We will multiply these two brackets. Is it clear? What? We will multiply these two brackets. How can we multiply? For example, 7 multiplied by x, 7 multiplied by 2, minus 3x multiplied by x and minus 3x multiplied by 2. Is it clear? Yes. Now, when we will multiply, so what is the answer? 7 into x. 7x, 7 into 2, what is the answer? It will be equal to 14. 3x into x, minus 3x square, minus plus minus, 3x into 2, what is the answer? It will be equal to 6x. It will be equal to 4. Yes. किसका माइक ऑन हुआ हुआ है? सारे मोहम्मद नदीम, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज. ठीक है. Now we will arrange the equation. I told you the first term will be x squared. So what is the answer? Minus 3x squared. Second will be x. We have 2x, 7x minus 6x plus 14 and minus 4 is equal to 0. So how can you write this? Minus 3x squared. 7 minus 6x, it will be equal to 1. 14 minus 4, what is the answer? It will be equal to 10, is equal to 0. Now, do you have any problem with this part or not? Right? One more thing, I told you the coefficient of x square must be 1. The coefficient of x square must be positive. Yeah? Coefficient. सर ये समझ में नहीं आया जब कर रहा है. Coefficient of x square must be positive. What's your name? सारे मोहम्मद नदीम. क्या चीज समझ में नहीं आई है? जरा आप मुझे सिर्फ इतने सी बात का जवाब दीजिए. आपके सामने मौजूद है, माइक अपना ऑन रखें और मुझे बताइए कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ और क्या चीज समझ में नहीं आई है. मुझे सिर्फ इतनी सी बात का जवाब. मल्टीप्लाई करवा लिया सब, उसके नीचे जो आपने स्टेप किया ना वो समझ में नहीं आया. 3x स्क्वायर और मुझे जस्ट अ मिनट, लिसन प्लीज. व्हाट आर द लाइक टर्म्स? 3x स्क्वायर का कोई लाइक टर्म्स मौजूद है? नो. ठीक है. व्हाट आर द लाइक टर्म्स ऑफ x? कैन यू टेल मी प्लीज? व्हाट सर? What are the like terms of x? x 7 और हेलो, आपको कुछ और नजर नहीं आ रहा? 7 है खाली सिर्फ? नो 6x. तो फिर they are the like term. तो फिर आपने इनको एक साथ लिख दिया 7x minus x, 7x minus 6x. Is it clear? Now, yes. What are the constant terms? We have two constant terms. One is 14 and the third one is 4. Okay, and the second one is 4. 4 will shift on the right side, left side. So what is the answer? It will become minus, right? So मुझे एक बात ये बताइए, when you will subtract 7 minus 6, it will be equal to 1x. 14 minus 4, it will be equal to 10. So मुझे बताएंगे जरा क्या मसला हुआ इसमें? बस सर अब समझ आ गया. Is it clear? Now, अब एक और चीज मैंने आप टर्न ऑफ द माइक प्लीज. एक और चीज याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यस बॉयज, यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है. सो व्हाट विल यू डू? यू विल मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड. या फिर आप एक काम ये करेंगे, माइनस साइन एज अ कॉमन. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई बाय -1, so what is this? It will be equal to 3x square minus x minus 10 is equal to 0. Right? जब मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे सबके साइन क्या हो गए? चेंज हो गए. और इसका जो माइनस था वो प्लस हुआ, इसका प्लस माइनस हुआ. ठीक है. और इसका प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया. इज इट क्लियर? राइट. मुझे एक बात बताइए,
10 threes are 30. What are the factors of 30? When you will multiply, it will be equal to 30. When you will add or subtract, it will be equal to 1, minus 1. Yes, can you tell me, please? 6 5 the 6 minus 6 plus 5. 3x square minus 6x plus 5x minus 10 is equal to 0. So what is the common piece? The common is, if 3x is common, and then what is the answer? Minus 2. Plus 5 is common, then x minus 2 is equal to 0. So x minus 2 and 3x plus 5 is equal to 0. Right? The first value of x is this. The second value of x is this. So the value of x is equal to 2. And the value of x is equal to minus 5 upon 3, which is your answer. Yes, boys. Any question, please? Sir, जी बेटा बोलें. sir, what have you written in the bracket that coefficient of x square must be? Positive. Plus के sign के साथ BE लिखा हुआ है. It means that it shows a positive. Is it clear? Now, do you have any problem in this part or not? Yes, boys. सर No, sir. Yes. सर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइज -1 को. Yes. Multiply by, देखिए multiply by -1. The whole equation multiply by -1. When you will multiply, it will become plus. ठीक है. अब इसके पीछे स्टेप आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है. फॉर एग्जाम्पल, लिसन प्लीज. कहाँ करूँ? नीचे कर लेता हूँ. ठीक है. मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सही है. मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई बाय माइनस. सही है. नाउ माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? राइट. वही इक्वेशन आ गई जो मैं आपको बता रहा था. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस बॉयज. एनी क्वेश्चन प्लीज? No, No, sir. sir. Everything is clear. व्हाट्स योर नेम? जो कह रहे हैं एवरीथिंग इज क्लियर. चले आए. एक दो क्वेश्चन और करें प्लीज. The question is given that, for example, 2x minus 1 and x plus 1 is equal to 0. Can you tell me? It is 1 mark. ये 1 mark का क्वेश्चन है. सही है. अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा. अगर ये 1 mark का क्वेश्चन है तो इस बताइए इसका आंसर क्या होगा. Yes. How can you solve this? You will multiply by this bracket. जी बेटा जरा जिसको भी बोलना है raise your hand और please tell me. Yes. Don't chat me please. ये चैट में मुझे आंसर मत दीजिएगा. जैसे इमरान, आई थिंक कि जो है वो मैं हर PDF को अपलोड कर रहा हूँ LMS पे. अगर आप चेक नहीं कर रहे तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको देख नहीं रहे. सर विल यू अपलोड दिस क्लास ऑन LMS? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप क्या इससे पहले की क्लासेस जो है वो LMS पे नहीं आई हैं? या आप लोग खुद चेक ही नहीं कर रहे LMS के ऊपर, तो आपको पता क्या चलेगा कि क्लासेस आई हैं या नहीं आई हैं? बहरहाल जी बेटा, how can you solve this? Please raise your hand. Yes, raise your hand please. How can we solve this? 2x minus 1 वो x बेटा what's your name? What's your name? मोहम्मद अहमद रजा. मोहम्मद अहमद रजा. मोहम्मद अहमद रजा. मोहम्मद अहमद रजा, जरा जोर के बोलिए. Yes, how can you solve this? सर 2x minus 1 को x plus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Very good. You are very genius. मोहम्मद अहमद रजा, आप क्लास में लेट आए थे? हाँ सर, वो मेरा पावर कोड हिल गई तो मैं वो पावर कोड नहीं लगा रहा हूँ. अच्छा ठीक है, सही. आप पावर कोड ही लगाइए. आई थिंक सो कि मैंने ये चीज आप नहीं बताई. ठीक है, अगर आप लोगों को शायद. जी बेटा 4 hands. Yes, Alina check. How can you solve this, Alina? Sir, we will equate both the equations with 0. Yes, very good. Both the equations will be 0. I told you when two brackets are multiplying and it will be equal to 0. Okay, so it means both the equation will be equal to 0. It will be equal to 0 and it will be equal to 0. So what is the first answer? 2x minus 1 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. The first value of x will be equal to 1 upon 2 and the second value of x will be equal to minus 1. Now it is your answer. Yes, boys. Any question, please? Right. One more, please.
For example, minus x minus 2 and two x minus 1 is equal to 0. Yes, how can you solve this? Yes, what is the answer, please? Yes, Mohammed Raza. -2x² ये Sorry? इससे मल्टीप्लाई -x-2 वो मल्टीप्लाई होगा 2x-1 से। यार और दोनों मोहम्मद coefficient- मेरा ख्याल के मोहम्मद अहमद रजा अभी मैंने एक चीज को क्लियर किया, अलीना ने क्लियर किया, आप फिर वो इसी बातों में लगे हुए हैं कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बेटा आप थोड़ा सा देख के तो बात अच्छा करें। तो फातिमा हबीब, बेटा थोड़ा अभी तो अलीना ने एक्सप्लेन किया है कि सर हाउ कैन यू सॉल्व दिस, सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर दोबारा आप वही बात बोले जा रहे हैं। सॉरी फातिमा हबीब, Sir, we will multiply both the brackets with 0. यस। अब And, लिसन अहमद रजा, आ रही समझ में आ रहा है उसने क्या बोला है आपसे? हाँ समझ गया। क्या बोला उसने, क्या बोला? वो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे 0 से। दोनों मल्टीप्लाई का उसने नाम ही नहीं लिया। वो इक्वल आपके जहन में एक चीज बसी हुई है कि जो है वो मल्टीप्लाई करना है। बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं करवा रहा हूँ जो आप लोग। जी बेटा फातिमा बोलें प्लीज। फातिमा, sir, we will solve both the brackets with 0. yes, both the bracket will be equal to 0, right? It means minus x minus 2 it will be equal to 0 and 2x minus 1 is equal to 0. Minus x minus 2 is equal to 0 and 2x minus 1 is equal to 0. You have to find the value of x. Is it clear? So minus 2 will shift on the right side, it will be equal to plus 2. But keep in mind, very good, minus 2 वहां पर जाएगा, minus 2 ही रहेगा। नहीं +2। तो मिस्टर अहमद रजा प्लीज बोलने से पहले जो है ना थोड़ा सा सोचें, राइट? Minus 2 will shift on the right side, it will become plus, but keep in mind the unknown must be positive but here is negative. Unknown must be positive but here is negative. So what would you do? Minus sign will shift here. So what is the answer? It will be equal to -2. The second is you have to find the value of x. So 2x is equal to 1 and the x is equal to 1/2. Is it clear? अच्छा, अभी एक साहब आए थे, क्या नाम है उनका? मोहम्मद अयान। यस मोहम्मद अयान, आर यू लिसनिंग बेटा? मिस्टर अयान मोहम्मद अयान, मोहम्मद अयान आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, सैयद अयान अली जैदी, यही नाम था ना शायद इनका? उस्मान साहब, आपने किसको मुझे इन करने को कहा था? यस सर। सैयद अयान अली जैदी, यू नो व्हाट इज द टाइम? आप अभी आए हैं या पहले चले गए? सर मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरा नेट चला गया था तो फिर मैं चला गया था। सॉरी सर मैं स्टार्टिंग में आया था, मेरा नेट चला गया था, इस वजह से मैं अभी दोबारा आया। अच्छा, आप वही थे जिनको मैंने रिमूव किया था? नहीं सर मैं वो नहीं था। अच्छा ठीक है, अपने माइक को जरा ऑन रखिएगा, मैं बार बार जो है वो आपके पास जो है वो कॉल करता हूँ, इसलिए मैं आपसे, ठीक है? तो प्लीज फौरन जो है वो रिप्लाई किया करें। अभी तो खैर माइक ऑफ रखें, ठीक है? सही, चलो ओके सर। ठीक है। अब यहाँ तक के तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही है, राइट? नाउ अब यहाँ से ये बिल्कुल बेसिक था जो आप पहले भी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट चीजें आ गई हैं। इफ यू हैव अ बुक, एवरीवन प्लीज टेक आउट योर बुक, ओपन पेज 9, ठीक है? एवरीवन, यस। Now everyone, yes, do you have any book of Fatma Habib of Faf, Ahmed Gaba? Do you have any book or not? Alina Sheikh? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्या सब लोगों के पास बुक है? Book 3? Sorry? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Everyone, please take out your book. Everyone, please take out your book, page number 9. और मैं जिससे पूछूंगा वो क्वेश्चन को
जिसको मैं बोलूंगा वो क्वेश्चन को सॉल्व करे। ये उस्मान शेख ये आपके आगे क्रॉस क्यों लगा हुआ आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू डोंट हैव बुक? मिस वो yes sir. यू हैव और नॉट? Sir, I don't have the book. That's Why? why. व्हाई यू डोंट हैव बुक? Sir, I haven't bought it yet. ये क्लास 8 में आप क्या बुक 2 पढ़ रहे थे? Sir, can you repeat that? क्लास 8 में आपने बुक 2 पढ़ी है, बुक 3 नहीं पढ़ी है? Sir, वो वाली सर कोर्स दे दिया था वो। कौन सा कोर्स दे दिया आपने? सर हमने बुक 2 पढ़ी है। अच्छा बुक 2 पढ़ी है, बुक 3 नहीं पढ़ी। तो बेटा ये मुझे एक बात ये बताइए कि व्हाट्स योर नेम? उस्मान। उस्मान, तो फिर आप उस्मान कब लेंगे शेख। ये बुक? उस्मान आप कब लेंगे बुक? सर आज बाबा जाएंगे। चले ठीक है, ले लीजिएगा, वैसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, पहला ले लीजिएगा, Okay, sir. ठीक है, ओके। देखिए व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? द इंस्ट्रक्शन इज गिवन दैट सॉल्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्व? सॉल्व मींस फाइंड द, इज इट क्लियर? उसके बाद गिवन है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इट इज गिवन दैट giving your answer answers correct to two decimal places where necessary। सही है। क्वेश्चन का मतलब समझेगा कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 decimal places, करेक्ट टू 2 decimal places where necessary, जहां जरूरी हो वहां पे 2 decimal places, अदरवाइज जो भी होगा वो लिखेंगे। इज इट क्लियर? मे बी द आंसर विल बी इन द whole number, maybe the answer will be in fraction form, maybe the answer will be in decimal form, right? So where necessary का मतलब है कि जहां पॉसिबल हो। ओके, अगर कहीं पॉसिबल है तो लीव योर आंसर या गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 decimal places, right? Now question number 2 part A. Okay, what is the meaning of the question number 2 part A? Listen please everyone. The question is given that x plus 1 whole square is equal to 9. Everyone listen please carefully, right? X plus 1 whole square is equal to 9, right? So what is the meaning of the solve? Solve means you have to find the value of x. You have to find the value of x. But मैं x की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, लेकिन x की वैल्यू मालूम करने के लिए the problem is that x will be closed in the bracket and it is the power 2. जब तक कि मैं पावर नहीं हटाऊंगा उस वक्त तक के जो है ये x सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब x को, इस पावर को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? पावर 2 है, आई टोल्ड यू, आई थिंक यू नो कि अगर पावर 2 है तो इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। स्क्वायर रूट एंड पावर 2 दोनों विल बी, बोथ विल, स्क्वायर रूट और पावर दोनों खत्म हो जाएंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखें होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो क्या रहा है प्रोसेस, इधर देखें x की पावर 2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। पावर 2 एंड पावर 2 विल बी कैंसल आउट, व्हाट इज द रिमेनिंग? x plus 1। इज इट क्लियर? सिंपल सा स्टेप है। सो x plus 1 एंड प्लीज कीप इन माइंड कि जब भी when
मुस्तफ़ा अली रिकॉर्डिंग को पॉज कर दो। ठीक है जी बेटा, जस्ट ऑल हैव डन और नॉट? सही है, अब जरा जल्दी से आइए और अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जरा सा सॉल्व कीजिए। पार्ट जी 5, what is the question? The question is given that 5 minus x whole square is equal to 7. Now everyone please solve this question. 5 मिनट is enough. 9:50 हो रहे हैं, 9:55 पे मैं आप लोगों से जो है वो कांटेक्ट करूंगा। सही है, प्लीज सॉल्व इट। अफाफ, आप कुछ कह रही हैं बेटा? सर मैं मोहम्मद अम्मार सर कंप्लीट। Done? Have you जी please check the answer from Sir, back done. beta? Okay, check the answer from back beta. सर क्या आप आंसर बता सकेंगे क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है सर। What? किसके पास बुक नहीं है? मोहम्मद अम्मार। आज आ जाएगी सर इंशाल्लाह। हाँ हाँ, वो अभी मैं लिखूंगा तो बता दूंगा। वेट अ सर मिनट थैंक यू। प्लीज।
सर जी सर मेरा आंसर सेम ही आ रहा है बुक जैसा, मगर बुक में शायद राउंड ऑफ हो गया आंसर्स लेके जाते हैं, मैंने राउंड ऑफ नहीं करा। नो प्रॉब्लम। और बेटा किस किस ने कर लिए हैं? 9:55 का टाइम दिया था। यस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव यू डन? जी बेटा। Sir, I'm also done. Sorry? I'm also done. Okay. Afaf, have you done? Afaf? No, sir. Why? बेटा जरा जल्दी से कर। अलीना शेख, have you done? Yes, sir. Ayman, are you listening बेटा? Have you done? Yes, sir. Have you done? The answer is correct or not? Yes. Hello. Jazzy Imran, have you done? Jazzy Imran. सर बस होने वाला है सर, 1 मिनट ओनली। Mohammad Raza, have you done? Yes, sir. Mubashir. No, sir. Mubashir. Yes. सर वो लास्ट पार्ट कर रहा Muhammad Ammar. जी सर डन। Mustafa Ali. Muhammad Hamza. Beta, almost. Yes. Usman Sheikh, have you done or not? सर डन। ठीक है। शामिर। मिस्टर राफे नदीम, आप क्लास में थे या जो है वो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से आउट हो गए थे, या फिर जो है वो अभी आप क्लास के अंदर आए? आपको पता है कि क्लास की टाइमिंग क्या था? मिस्टर राफे नदीम, आर यू लिसनिंग हियर? या मैं क्लास से आउट करूं फिर दोबारा? मिस्टर राफे नदीम। मिस्टर राफे नदीम, आर यू लिसनिंग बेटा? राफे। वेयर इज योर माइक बेटा? मुझे ऐसे चैट के ऊपर जो है वो आंसर मत दिया करें। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि वेयर इज योर माइक? योर माइक इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? हेलो राफे, आर यू लिसनिंग बेटा? ठीक है, आगे बेटा। लिसन प्लीज। ऑल इट डन और नॉट? चलें, अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा दूं, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलें, लिसन प्लीज। The question is given that 5 minus x का whole square is equal to 7. Taking a square root on both sides. What is the square root of 7? जी बेटा, what is the square root of 7? 2.64. 2.64. 2.64. It means that it will become positive and second is negative. Is it clear? Now 5 will shift on the left side. Sorry, on the right side it will become negative. What is the answer? Plus 2.64 minus 5. What is the answer, beta? Yes. Minus 5 minus 2. Yes, what is the answer? 2.64 minus 5. Sorry. Hello. Minus 2.36. Minus 2.36. Please turn off your mic. Minus 2.36. Minus and minus will be cancelled. So what is the answer? X is equal to 2.36. It is your answer.
सेकंड आंसर तो अब आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, नो इशू के क्या है वो क्या है। सही है, मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ इसी में से। राइट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 H। सही है, लिसन प्लीज। The question number 2 is H is given that 1/2 minus x का whole square. The question is given that 1/2 minus x whole square is equal to 10. Is it clear? Don't worry about this. इसमें भी ऐसे मेथड होगा, taking square root on both sides. Square and square root will be cancelled. So 1/2 minus x is equal to plus minus square root of 10. What is the meaning of the square root of 10? Yes. Yes, what is the meaning? Yes, what is the square root of 10? Yes, everyone please take out your calculator, please. 3.16. 16. 3.16, not 16, right? It means that one is positive and the second is negative. 1/2 minus x is equal to minus 3.16. ठीक है, 1/2 will shift on the right sides. Okay, minus x 3.16. 1/2 मतलब means 0.5. ठीक है, 3.1 में से जो है वो 3.16 में से 0.5 माइनस कीजिए. What is the answer? Yes, boys. 3.16 minus 0.5. Yes. 2.66 आ रहा है. 2.66, not 2.66. आपको इसने बताया नहीं है किसी ने. अभी भी मैंने आपको क्लियर करवाया था, लेकिन आप हमेशा, मैंने यही देखा है कि आप बस एक ही डगर के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं. minus 2.66, right? Next step is 1/2 will shift on the right side. Minus 3.16 minus 0.5 minus x. What is the answer? जी बेटा. Yes, what is the answer? 3.66. Minus 3.66. Minus and minus will be cancelled. So what is the answer? The value of x is equal to 3.66. Yes, boys. Any question, please? ठीक है. अब इसमें से जो बच रहे हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ. आपका जो होमवर्क है वो उस होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 सही, B, D and F. Question number 2, B, D. Is it clear? Question number 3. Question number 3. Yes, anyone can tell me what is the question number 3? What is the question? Yes. Yes. The question is given that express in the form of x plus a whole square plus b. Express in the form of, अब आपकी जो इक्वेशंस हैं उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. किस फॉर्म में? x plus a का होल स्क्वायर प्लस b. इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. How can you solve this? Look at this. The first part is given that x square plus 12x. Listen, it is very important और इसको बहुत सोच समझ के जरा से सॉल्व कीजिएगा और देखभाल के, ठीक है? ये ना हो कि कोई गलती आ जाए, right? Everyone listen please. X square plus 12x. What is the question? The question is given that x square plus 12x and you have to write here. आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. Now tell me what is the coefficient of x? X का कोफिशिएंट क्या है? Yes. Anyone can tell me? Yes, please turn on your mic, please. और मुझे बताइए x का कोफिशिएंट क्या है? 12. Listen please. Everyone listen please. 12 divided by 2. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है सर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे. ये फॉर्मूला है कि हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे. द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2. दोबारा बोल रहा हूँ, द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2. दोबारा कह रहा हूँ, द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इट इज फॉर्म, राइट? अच्छा, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो यू कैन कैंसिल इट. यस, 2 1 2 2 6 12 एंड देन स्क्वायर.
आप सिर्फ स्क्वायर शो करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे नहीं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? राइट, मैंने क्या किया, दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? द कोफिशिएंट ऑफ x इज 12 डिवाइडेड बाय 2। मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ 2 से? बिकॉज इट इज द फॉर्मूला। What is the answer? It will be equal to 6, right? And then square, and then square, and then square. What is the meaning of the square? ठीक है, square. Is it clear? But you will not take the square. अब आप आगे देखें, आगे क्या होगा? Adding and subtracting 6 whole square. You will not square. Adding and subtracting. मैथ्स का एक रूल है, अगर आप ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड भी करेंगे। मैथ्स का एक रूल है, दोनों एक साथ चलता है, राइट? इसी तरीके से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लीज कीप इन माइंड, मैथ्स का रूल फॉलो होना चाहिए। क्या? अगर आप पहले ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, हमेशा पहले इस जगह पर हमेशा पहले ऐड आएगा। That's why I am writing adding and subtracting. हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा, आपको फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो that's why you have to write adding and subtracting. So you can write this: x square plus 12x, right? 12 divided by 2 कितना आता है? 6, 6 का स्क्वायर, सही है, and then 6 का स्क्वायर। Is it clear? अब आप देखें गौर से, adding and subtracting, adding and subtracting. So what will you do? सही है, इसमें हम क्या करेंगे? Listen please, listen. x square, इसका मतलब है x यहाँ पर इस तरह से, ठीक है? अब आप ये देखें, अब क्या होगा? Listen please. ब्रैकेट, व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट? मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने इसको x स्क्वायर था ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई मसला तो नहीं है ना? x plus 6 square, right? What is the first bracket? X. What is the first sign? plus Yeah. What is inside the bracket? 6 6. And then square. Minus, what is the square of 6? 36. सही है। What is your answer? The answer is x plus 6 का whole square minus 36. It means x plus a whole square, x plus a whole square plus b. What is the value here? What is the value of a? Yes, what is the value of a? The value of a is 6 and the value of b is minus 36. Any question please? मेथड समझ में आया आपको? जी जैसे इमरान बोले। सर ये समझ में नहीं आया 36 कहाँ से आया? यार 6 का स्क्वायर क्या होता है यार? तो सर वो हमने वो सब 6 का स्क्वायर क्या? हाँ 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 फिर अब आगे समझ में। सर वो लेकिन ब्रैकेट में सर वो प्लस वाला क्यों लिया, माइनस वाला क्यों नहीं लिया? क्यों? आपको ये नहीं पता कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज बनाई है आपने, और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a प्लस b और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के, ठीक है? तो मैंने इसी फॉर्मूले में तो कन्वर्ट किया है इसको, ये जो तीन नंबर्स थे इनको मैंने इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इन चीजों पे जरा सा ध्यान रखिएगा, अभी आगे भी चेंज होंगे तो ख्याल रखें किस तरह से सॉल्व हुआ। इज इट क्लियर? अब आप ये देखें जी बेटा, और एनी क्वेश्चन प्लीज? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। No, sir. यस 20 स्टूडेंट 19 स्टूडेंट्स आर हियर। तो बाद में यही मत बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया घर जाके, फिर आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, राइट? देखें एक और क्वेश्चन है पार्ट बी। पार्ट बी इज गिवन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म थी, ठीक है? सेकेंड पार्ट में 3 टर्म है, लेकिन हमारा काम 3 टर्म से नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? 2 टर्म से होगा।
सही है, हमारा काम किससे होगा? ओनली 2 टर्म्स। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए 2 टर्म्स से काम हमारा कैसे होगा। लिसन प्लीज, 1 को छोड़ दें अभी फिलहाल। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 6 6 को हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? 2 2 से। व्हाट इज द आंसर? 3। उसका क्या करेंगे? उसका क्या करते हैं? सर 3 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर में फॉर्म में लिखेंगे। 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। व्हाट इज द Yes, sir. सेंटेंस? एडिंग एडिंग एंड And- सब्ट्रैक्टिंग 3 स्क्वायर। adding and subtracting 3 square. Is it clear? यस सर। x square minus 6x. अब 3 का स्क्वायर माइनस +1। यहाँ तक क्लियर है? अब ये +1 वापस आ गया, ठीक है? जो ये बाहर था ना, ये +1, ये +1 यहाँ पर आ गया। सही है, अब ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे। सही है, और ये इन तीन पे फॉर्मूला बनेगा, इन 3 पर फॉर्मूला बनेगा। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? कीप इन माइंड x ये ऐसे है, ठीक है? अब क्या होगा? व्हाट इज इनसाइड ये x? व्हाट इज द फर्स्ट साइन? माइनस। व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट? 3 होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 +1। सही है, ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे। -9 +1, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी इस ब्रैकेट से। यस, x -3 होल स्क्वायर, -9 +1, व्हाट इज द आंसर? -8। क्या आया? -8। तो व्हाट इज दिस? अगर मैं कंपेयर करूं x + a होल स्क्वायर प्लस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? yes, so do you have any problem? What is the value of a? -3. What is the value of b? -8. It is your answer. Now beta, do you have any problem in this part or not? Yes boys, समझ में आया नहीं आया? देखिए भाई, खुद से प्रैक्टिस गया करना सर। पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं होगी आपको खुद समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी घर पे जाके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1F, क्वेश्चन नंबर 3F, सॉरी। Question number 3F is given that x square minus 2/9 of x. Now everyone listen please. Right, what is the coefficient? अब फिर दोबारा 2 टर्म आ गई। What is the coefficient of x? Yes, what is the coefficient of x? सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर भी आप लोग बोलते ही नहीं है। सही है, what is the coefficient of x? 2/9, 2/9, and you will divide it by 2. सही है। अब मैं इसका शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ कि ये जो 9 है इस 2 से क्या होगा? ये 9 इस 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा। सही है, सो व्हाट इज आंसर? 2/18। क्या आंसर आएगा? 2/18। यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई। यस, व्हाट इज दिस? 1/9 एंड देन स्क्वायर। अब आप क्या लिखेंगे? Adding and subtracting 1/9 square. Is it clear? सही है? Is it clear or not? सर जी बेटा। एक दफा आप बता देंगे कि जब 2/9/2 तो आपने 9 को 2 से क्या करे? मैंने अभी, अगर आप गौर से देखें तो आपको ये चीज नजर नहीं आ रही मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? किसको किससे मल्टीप्लाई किया? बेटा मैं हर चीज का शॉर्ट फॉर्म आपको सामने लिख रहा हूँ, आप लोग देख ही नहीं रहे। 2/9 लिखा हुआ है, तो 9 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया?
2 से। तो जब भी ऊपर फ्रैक्शन है और नीचे डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब you will apply the formula, you can write this x whole square, so you can, देखें what is this first term, what is first term, x, what is first sign, minus, what is inside 1 upon 9 whole square minus 1 upon 81. Is it clear? So what is your answer? The answer is x minus 1 upon 9 का whole square minus 1 upon 82. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी वॉइस, एनी क्वेश्चन प्लीज? ठीक है सर। नो सर, राइट। तो ये पूरा अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। भाई मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सही है, और होमवर्क में आपने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये आप करेंगे अब सी डी, सही है, एफ और जी एंड एच, सही है। भाई देखें, इट्स डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। मैंने आपको तकरीबन इसी टॉपिक के 1 2 3, सही है, तो 3 क्वेश्चन मैंने डिफरेंट 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब आपका काम है कि आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है, इट्स डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एंड सर प्लीज नहीं करना ई जी बेटा, क्वेश्चन 4 का लिखा हुआ नहीं। ठीक है। और दूसरी चीज, जब आपके स्कूल इंशाल्लाह फिजिकली जब आएंगे आप लोग, तो आई विल चेक योर रजिस्टर। तो मैं आपको अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि LMS पे ये अपलोड हो रहा है PDF, आप इसी PDF को जाकर कॉपी कर लीजिएगा, और इसी के अंदर जो है वो होमवर्क मौजूद है। तो इसका मतलब है अगर आप होमवर्क करेंगे तो PDF जरूर चेक करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करें। ठीक है। अब ये मैं किसी के घर पे आके मैं होमवर्क चेक नहीं कर सकता, ना मैं किसी के घर पे आके होमवर्क ये करूंगा कि होमवर्क करो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इन चीजों को आपने याद रखना। ठीक है बेटा, तो फिर इंशाल्लाह ताला वी विल, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं जरा अटेंडेंस ले लूं। ठीक है, फिर उसके बाद आप जस्ट अ मिनट। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, टेक केयर। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह ताला क्लास में करते हैं। ओके, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।